next topic of the chapter second solution, that is vapor pressure of a liquid. Now, what is a vapor pressure of a liquid? Vapor pressure of a liquid is one of the physical property of a volatile liquid. मतलब जो liquid जिनकी टेंडेंसी है वेपर फॉर्म करने की, तो उन लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर. जिस तरीके से लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है उसका डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, ठीक है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट. उसी तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज आल्सो वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इज वॉलेटाइल इन नेचर. ऐसे लिक्विड्स जो क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं हीटिंग करने पर, या नॉर्मली आप एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उनको प्लेस करेंगे, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज अ vapor pressure of liquid. Suppose if I am taking a volatile liquid in a closed container, then the liquid has a tendency to convert into the vapor through the process of evaporation. ये liquid क्या है, volatile liquid है, so इसकी टेंडेंसी क्या होगी, it has a tendency to form a vapor. ये आपकी वेपर है और ये आपका volatile liquid है. But this container is closed, so this vapor doesn't extend out from into the external environment. This container is closed, so that vapor form has a tendency to again convert or has a tendency to condense again into the liquid. So what is the process take place in whole mechanism? Initially the liquid has a tendency to convert into the vapor. That process is called evaporation, and the form vapor again condense into the liquid, so that process is condensation. Initially the rate of evaporation is high and rate of condensation is almost zero or low. As the amount of vapor form, the rate of condensation form and rate of condensation also increases, and one stage will be reached when the rate of evaporation become equal to rate of condensation, and that is the stage of physical equilibrium. So at the stage of physical equilibrium, what is the stage of physical equilibrium? When the rate of evaporation is equal to rate of condensation. At that stage, the pressure exerted by the vapor present over the liquid is called vapor pressure of liquid. इस physical equilibrium की stage पर ये जो वेपर इस लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है, ये जो वेपर इस लिक्विड पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, that pressure is called its vapor pressure. So to measure its vapor pressure, we will connect a barometer tube to this apparatus. इस तरीके से एक बैरोमीटर ट्यूब हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे. इस बैरोमीटर ट्यूब में क्या फिलअप रहता है, इनिशियली मरकरी फिलअप होता है, ठीक है, जिसमें दोनों लिप्स पर मरकरी का जो लेवल है वो सेम होता है, लेकिन जैसे प्रेशर फॉर्म होता है ये लिक्विड, ये मरकरी कॉलम की हाइट क्या होती है, सेकंड वाली लिप्स में इंक्रीज होना शुरू होती है, एंड दैट हाइट मेजर्स द वेपर प्रेशर. और प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, H rho G. दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर. सो हाउ कैन वी डिफाइन अ वेपर प्रेशर? व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन are equal, at that stage of physical equilibrium, the pressure exerted by the vapor present over the liquid is called its vapor pressure, and it is one of the physical property of volatile liquid. Now how this vapor pressure is related to the boiling point?
So relation between the vapor pressure and boiling point is what? Boiling point of a liquid is the temperature when its vapor pressure becomes equals to the atmospheric pressure. Boiling point of a liquid is the temperature when its vapor pressure becomes equals to the atmospheric pressure. For example, if I am taking a liquid whose vapor pressure is for example 600 mm of Hg. Now what will be the value of atmospheric pressure? Atmospheric pressure is that is 1 atm और that is equals to 760 mm of Hg. तो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 mm of Hg हो जाएगा, ठीक है, एज यू हीट अप द लिक्विड, जैसे ये वेपर प्रेशर 600 से 760 पहुंचेगा, that temperature becomes its boiling point. So that is the relation between vapor pressure and boiling. So how can we define? Boiling point is the temperature of a liquid when its vapor pressure becomes equals to the atmospheric pressure. Is it clear? And what is the vapor pressure? The pressure exerted by the vapor present over the liquid when both liquid and vapor are at stage of physical equilibrium. Is it clear? So मैं दोनों डिफाइन कर लेता हूं एक बार. Vapor pressure, the pressure exerted by vapor present over liquid when both liquid and vapor are at physical equilibrium, and that is one of the physical property of volatile liquid. And boiling point क्या होगा? Boiling point is a temperature of liquid when its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Is it clear? अब हमने बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस क्यों किए हैं? बिकॉज द मेन टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, अभी हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two volatile liquids. मीन्स आपको एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है. उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम ए ले रहे हैं, सॉल्यूट को हम बी ले रहे हैं, एंड बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर volatile in nature. तो ऐसे सॉल्यूशन का क्या फॉर्म करना है हमें? ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करना है? फॉर्म करना है. Now what we have discussed, vapor pressure of solution containing two volatile liquids. Vapor pressure of solution containing two volatile liquids means solution के अंदर दो component होते हैं, solute and solvent. Now both the component of this solution are volatile in nature. मतलब solute भी volatile है और solvent भी क्या है? Volatile है. And in the pure form, in a pure state, their vapor pressure is P naught B and P naught A. मतलब जब वो दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों को मिक्स नहीं किया है, उससे पहले सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या है? P नॉट बी. और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? P नॉट ए. आफ्टर दैट हमने क्या किया? इन दोनों के डिफरेंट अमाउंट्स
को लेकर इन दोनों को मिक्स किया है and make a solution. Now we are interested to find the vapor pressure of solution form. इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर फॉर्म करना है. So the expression of measurement of vapor pressure of solution given by Raoult's law. एक लॉ प्रपोज किया गया, Raoult's law. So Raoult's law states that the vapor pressure or partial vapor pressure of component of solution is directly proportional to their mole fraction in solution. क्या स्टेटमेंट है? Raoult's law states that the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to their mole fraction in the solution. मतलब सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल कि सपोज सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जो है वो हम XA ले लें और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन हम क्या ले लें, XB. ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या है, XB. तो आपका राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा है? That vapor pressure of solvent in the solution, that is PA, is directly proportional to XA, and partial vapor pressure of solute in the solution is directly proportional to XB. The partial vapor pressure of components of a solution is directly proportional to their mole fraction in the solution. यानी सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो XA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसका वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XB के. अब देखिए ये जो PA और PB है, ये जो वैल्यू है P0A और P0B से डिफरेंट है. P0A and P0B is a vapor pressure of A and B when they are in a pure state, मतलब जब तक उनको मिक्स नहीं किया है. मिक्स करने के बाद सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है PB, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है PA. तो हम इस इक्वेशन को रिजॉल्व करें तो PA is equals to P0A XA, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया, इक्वेशन फॉर्म करी तो PA is equals to P0A and PB is equals to P0B XB. Now the total vapor pressure of solution is equals to PT, and that is equals to the algebraic sum of partial pressure of both the components. So P total क्या हो जाएगा, P0A XA plus P0B XB. So that is a total vapor pressure of solution containing two volatile liquid. That is a vapor pressure of solution containing two volatile liquid. P0A XA plus P0B XB. That is the first equation of the vapor pressure of solution containing volatile liquid. Two volatile liquids. Is that clear? ये मैथमेटिकल रिलेशन समझ में आया? ठीक है. अब now we derive two more equations related to this total pressure of solution. अब हमने, as we know that XA plus XB is equals to 1, तो XB can be written as 1 minus XA. तो इस इक्वेशन में XB की जगह क्या रख दीजिए, 1 minus XA. तो P टोटल क्या हो गया, P0A XA plus P0B 1 minus XA. तो ये हो गया P टोटल इज P0B plus XA P0A minus P0B. देखिए ये P0A XA और ये माइनस P0B XB.
सॉरी एक्स ए, तो एक्स ए कॉमन आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स ए की जगह आप क्या रख दीजिए, 1 माइनस एक्स बी। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या पुट किया, P total is equals to P naught A, in place of x A we are placing 1 minus x B plus P naught B x B, so P total is P naught A plus x B P naught B minus P naught B, so that is the third equation of partial pressure of solution. So that is the original equation. In the इस original equation से हमने ये दो equations और form कर, so that is a mathematical relation of partial या vapor pressure of solution containing two volatile liquid. Is it clear? Now we relate this whole mechanism by graphical method. अब हमने क्या डिस्कस किया, according to the Raoult's law, partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction. So PA is directly proportional to XA. तो सपोज हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन. So the graph is a straight line passing through origin. If I am plotting the graph between the partial pressure and mole fraction of the component, partial pressure of the component and the mole fraction of the component, तो directly proportional का relation है, so this graph forms a straight line passing through origin. Now I am plotting the graph of partial pressure of solution, taking the partial pressure of both solute and solvent. solute और solvent दोनों के partial pressures को लेकर मैं total vapor pressure of solution का कर्व प्लॉट कर रहा हूं. कैसे देखिए, now I am taking two vertical axes. यहां पर आपका होगा partial pressure of solute और यहां होगा partial pressure of solvent. ठीक है, यहां हमने लिया एक्स ए 0 और यहां एक्स ए की वैल्यू 1, ये मोल फ्रैक्शन है एक्स एक्सिस पे, और इसी पॉइंट पर एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम है 1 और एक्स बी की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी 0. ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 है. यदि सारे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के हुए तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0 और सारे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के हुए तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे 0. और इस तरफ हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट लिया है, इस तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिया है. अब देखिए ग्राफ हमारा पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. तो कैसे देखिए ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, यहां पर एक्स बी की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये आपका आ गया पी नॉट बी, और यहां एक्स बी की वैल्यू 0 है, तो यहां देख सकते ये आपका ग्राफ आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. ये जो लाइन आई पीबी की वैल्यू आ गई, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. ये समझ में आया लाइन कैसे फॉर्म हुआ है, यहाँ एक्स बी की वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स बी की वैल्यू 1 है. इस इक्वेशन में आप जब एक्स बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा 0, ठीक है, और जब आप पीबी की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स बी की वैल्यू 1 रखेंगे सॉरी, तो पार्शियल प्रेशर क्या आएगा पी नॉट बी, पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी नॉट बी. तो ये मैक्सिमम हो गया यहाँ, तो यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है. यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिखे, पार्शियल प्रेशर भी लिखेंगे तो भी चलेगा. अब यहाँ पर इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
मैक्सिमम है। तो यहाँ एक पॉइंट ले लिया और यहाँ हमने ये दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर, ये आपकी वैल्यू, ये ग्राफ हो गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब मैंने यहाँ क्या कंसिडर किया है कि मेरी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए ये वाला पॉइंट थोड़ा हाइट पे लिया, ये थोड़ा स्मॉलर हाइट पे लिया। ये पी नॉट ए हो जाएगा, ये पी नॉट बी, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होगी, this line is the partial pressure of solution P total and that is equals to PA plus P। ये आपका PB का ग्राफ है, ये आपका PA का ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है ये आपका क्या हो जाएगा, P total is equals to PA plus PB। ये तीनों लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइन है। So that is a graphical representation of partial pressure of solution containing two volatile liquids. Mathematical expression P total is equals to P naught A x A plus P naught B x B. Is that clear? Where P naught A is the partial pressure of solvent in a pure state, P naught B is the partial pressure of solute in a pure state, x A their mole fraction in a liquid phase and xb their mole fraction of solute in a liquid phase। अब मैं यहाँ liquid phase क्यों बोल रहा हूँ, ये आप देखिए, ये xa मैंने क्या बोला, xa is a mole fraction of solvent in a liquid phase and xb is a mole fraction of a liquid, so mole fraction of solvent, mole fraction of solute in the liquid phase। क्योंकि जब उनको मिक्स किया है तब वो लिक्विड स्टेट में है, मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है, जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट है वोलेटाइल है मींस दे फॉर्म देयर वेपर, तो उनकी दोनों कंपोनेंट्स की अलग अलग वेपर भी बनेगी, तो उस वेपर का भी क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोजिशन होगा, और वो इंडिविजुअल कंपोजिशन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, YA एंड YB से। तो YA क्या है, YA is a mole fraction. Now I am discussing the composition of solute and solvent in a vapor phase। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स किया तो आपका सॉल्यूशन बन गया। अब वो दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है तो उनकी वोलेटाइल नेचर के हैं, तो उनकी टेंडेंसी क्या है, वेपर बनाने की भी रहेगी। तो वो जो वेपर बनाएंगे तो उस वेपर का मोल फ्रैक्शन यदि आपको दिया हुआ हो, YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A in a vapor phase, and YB is what, mole fraction of solute B in a vapor phase। और these compositions can be carried out या calculated by using Dalton's law of partial pressure। अब YA और YB की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, by using Dalton's law of partial pressure। राउट लॉ से नहीं कैलकुलेट होगी, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इज YA into P total। YA क्या है, देयर मोल फ्रैक्शन into P total। तो YA की वैल्यू क्या हो जाएगी, PA by P total, और PB कैसे लिखा जाएगा, PB is equal to YB into P total। तो YB की वैल्यू क्या हो जाएगी, PB upon P total। और ये जो PA और ये PB कैलकुलेट किए हैं, PA क्या है, P naught A x A, और PB क्या है, P naught B x B। इनके लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है और उनके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, उन्हीं से हमने PA PB कैलकुलेट किया और उससे फिर P टोटल कैलकुलेट किया। P टोटल है PA प्लस PB, और इनकी वेपर फेज के जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे कैलकुलेट किए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर,
partial pressure of a vapor is equals to its mole fraction into total pressure. ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। तो YA की वैल्यू हो जाएगी PA अपॉन P टोटल, YB की वैल्यू हो जाएगी PB अपॉन P टोटल। Is it clear? So here we discuss one of the important topic of this unit, vapor pressure of liquid containing two volatiles component। अब देखिए क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं तो आपको ये जो मैंने डिस्कस किया है और क्लियर आउट होगा अच्छे से कि एग्जैक्टली हमने क्या डिस्कस किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है, दो कंपोनेंट्स हैं आपके पास, वन इज अ क्लोरोफॉर्म एंड वन इज अ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, मैं क्वेश्चन के डेटा आपको मैं लिख देता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 515 mm of Hg। आपके पास दो कंपोनेंट है, one is chloroform CHCl3 and another one is CH2Cl2। इसका आपका वेपर प्रेशर आपने लिया P0A लिया 200 mm of Hg और P0B आपको दे रखा है 500 mm of Hg। ठीक है, अभी दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन which prepared by mixing of 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2। ठीक है, ये हम B ले लेते हैं, इसको P0B ले लेते हैं, इसको P0A, ताकि जो हमने लास्ट इक्वेशन डेराइव करी उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। जो लेसर अमाउंट में है उसको हमने B लिया, जो मोर अमाउंट में है मतलब सोल्यूट को B लिया, सॉल्वेंट को A लिया। तो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के इतने इतने अमाउंट हमने लिए हैं, इन दोनों को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। Calculate the vapor pressure of solution formed by mixing the 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane, and also calculate mole fraction of each component in a vapor phase। यानी you also calculate YA and YB। आपको क्या कैलकुलेट करना है, YA and YB भी कैलकुलेट करना है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, मोलर मास ऑफ CHCl3 दैट इज गिवन, मोलर मास ऑफ CHCl3 आपको दे रखा है 119.5 एंड मोलर मास ऑफ CH2Cl2 दैट इज आल्सो गिवन, दैट इज 85। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखिए, now as we know that P total is P0A XA plus P0B XB। यदि कॉल कट जाए तो ज्वाइन हो जाइएगा वापस, क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो P total is P0A XA plus P0B XB। अब पहले मुझे XA और XB की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि P0A और P0B की वैल्यू दे रखी है। now XA is mole fraction of CH2Cl2 in a liquid phase और इसकी वैल्यू होगी Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, और Xb की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस XA। ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। ठीक है, बट मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने से पहले मुझे Na और Nb की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं कैलकुलेट करता हूं Na और Nb की वैल्यू। ठीक है, Na that is moles of CH2Cl2 और वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ CH2Cl2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH2Cl2। तो अमाउंट ऑफ CH2Cl2 दिया हुआ है 40 और उसका मोलर मास दिया हुआ है 85। ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 85, so that comes 0.470 और Nb is
मोल्स ऑफ CHCl3, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ CHCl3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CHCl3. The amount of CHCl3 is 25.5 divided by molar mass, that is 119.5. तो ये मोल्स आपके आ जाएंगे 0.213. अब Na और Nb की वैल्यू आ गई, तो इसके बेसिस पर हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, XA और XB की वैल्यू. तो XA आया Na/Na प्लस NB. तो Na की वैल्यू कितनी है, 0.470 अपॉन 0.470 प्लस 0.213. तो 0.470 डिवाइड बाय 0.683. 0.470 डिवाइड बाय 0.683. तो दैट वैल्यू कम्स 0.688. ये XA की वैल्यू आ गई. तो XB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस XA, क्योंकि XA प्लस XB की वैल्यू क्या होती है, 1. तो हम 1 माइनस XA से XB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1 माइनस 0.688, so that comes 0.312. ये XA और XB की वैल्यू आ गई. So after calculating the value of XA and XB, now we calculate the partial pressure of CH2Cl2 and partial pressure of CHCl3. तो अब आपका कैलकुलेशन होगा PA is equals to P naught A XA. तो ये हो गया P naught A की वैल्यू, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इन द प्योर स्टेट, और इसकी वैल्यू थी 450, और XA की वैल्यू हमने दे रखी है 0.688. तो 415 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.688 से, सो इट वैल्यू कम्स 285.52 mm ऑफ Hg. और PB की वैल्यू कितनी है, P naught B XB. तो P naught B की वैल्यू थी 200 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.312 से. 200 को किससे मल्टीप्लाई किया, 0.312 से, तो ये वैल्यू आ गई 62.40 mm ऑफ H. तो अब PA और PB की वैल्यू आ गई. तो PA और PB की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब आपकी कैलकुलेशन फाइनल P टोटल आ जाएगा. सो P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB. ठीक है. सो PA इज 285.52 प्लस 63.40. तो ये हो गया 348.92 mm ऑफ H. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म. तो पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, पहले हमने कैलकुलेट किया Na, फिर कैलकुलेट किया Nb, फिर हमने कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, देन कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ B, उसके बाद टोटल partial pressure of A, then partial pressure of B, then calculate the partial pressure of solution. So ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका कैलकुलेटिव है, पूरा टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन है. ठीक है. पहले मोल कैलकुलेट करने हैं, फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, फिर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने हैं, और फिर टोटल प्रेशर कैलकुलेट होगा. अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना बाकी है, देयर मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज. तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन YA, ये आपका किसका वेपर प्रेशर आया, CH2Cl2 का, और ये आया CHCl3 का. अब हमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं CH2Cl2 के, तो ये हो जाएगा PA अपॉन P टोटल. PA की वैल्यू हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट करी है 285.52 डिवाइड बाय 348.92. ठीक है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.82 के आसपास आएगी. अब YB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज सिंपली कैलकुलेट 1 माइनस YA. इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.82, दैट वैल्यू कम्स इज 0.18. तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेशन है इसके अंदर.
that is the whole calculation in this question. That is a partial pressure or vapor pressure of solution containing two volatile liquids. आपको कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, पी ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो उसके लिए पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए, फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए, फिर दोनों के पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किए और फिर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया। और वेपर प्रेशर में उनके वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। इससे YA की वैल्यू आ गई और YB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस YA कैलकुलेट किया। तो इससे आपको क्या आ गया, देयर मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज। XA और XB अलग है, YA और YB अलग है। इज दिस क्लियर? समझ में आया? ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया आपको? देखिए